روح مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ اب ایسا دوسرا آئینہ نہ ہماری بزم خیال میں نہ دکان آئینہ ساز میں، بے شک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا کوئی آیا نہ کوئی آئے گا، کہ جن کی سیرت طیبہ کا ہر پہلو نرالا اور امت کے لیے مینار ہدایت ہے، رہتی دنیا تک پوری انسانیت کے لیے مینار نور کی حیثیت رکھنے والے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یوم ولادت پر لاہور سے سہیل کیسر کی یہ رپورٹ دیکھیے۔ اس شان کرم کا کیا کہیے، دنیا کو مسخر جس نے کیا، یہ وصف کہاں شمشیروں میں، یہ بات کہاں تلواروں میں۔ بے شک کسی کو اس بات پر کوئی شک نہیں ہونا چاہیے کہ امام الانبیاء حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس دنیا میں تشریف لانے سے ہی اندھیروں میں بھٹکتی ہوئی انسانیت کو روشنی ملی، جن کی رحمت کا دائرہ صرف انسانوں ہی نہیں بلکہ تمام عالمین پر محیط ہے۔ رب العزت خود ارشاد فرماتے ہیں، اور اے رسول محتشم، ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ آج پوری امت مسلمہ رحمت للعالمین کا یوم ولادت پورے مذہبی جوش و خروش سے منا رہی ہیں۔ اس کی سیرت حسین، اس کی صورت حسین، اس سا کوئی نہ تھا، اس سا کوئی نہیں۔ اور رب العزت کا فرمان تو سنیے کہ تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں خوبصورت نمونہ ہے۔ تو بس پھر جس ہستی کی زندگی کو خود اللہ تعالی ہمارے لیے نمونہ قرار دے رہے ہوں، تو پھر یہی کہا جا سکتا ہے کہ شوق و نیاز و عجز کے سانچے میں ڈھل گیا، یہ کوچہ حبیب ہے پلکوں سے چل گیا۔ کیا ہی اچھا ہو کہ آج ہم اس دن کی مناسبت سے یہ عہد بھی کریں کہ ہم اپنی زندگیاں سیرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میں گزاریں گے۔ ملک بھر میں جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مذہبی عقیدت اور احترام کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ گھروں اور مساجد میں چراغاں مارتے رنگ برنگی روشنیوں سے سج گئی ہیں۔ ہر سو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود اور سلام کی صدائیں بلند ہیں۔ سیرت النبی کے موضوع پر سیمینار، کانفرنسز اور محافل نعت کا بھی اہتمام کیا جا رہا ہے۔ اسی حوالے سے مزید کیا تفصیلات ہیں اور کیا گہما گہمی ہے، کیسی تیاریاں ہیں، یہ جان لیتے ہیں۔ لاہور سے ہمارے ساتھ راحیل سید موجود ہیں۔ راحیل، بتائے گا اہلیان لاہور کی کس طرح کی تیاریاں آپ دیکھ رہے ہیں؟ شہر لاہور میں جو ہے عید میلاد النبی جو ہے وہ مذہبی عقیدت و احترام سے جو ہے وہ منایا جا رہا ہے۔ اس حوالے سے تقریبات جو ہے وہ منعقد کی جا رہی ہیں۔ جو قدیمی جلوس ہے جو ریلوے اسٹیشن لاہور سے جو ہے وہ نکالا جاتا ہے، اس کی تیاریاں جو ہیں وہ شروع ہو چکی ہیں، اور باقاعدہ طور پر جو ہے وہ قدیمی جلوس کا جو ہے وہ آغاز کر دیا گیا ہے۔ یہاں پر جو ہے وہ مختلف جو ہے وہ کھیلوں کے مقابلوں کا بھی جو ہے وہ آغاز کیا گیا ہے، جس میں بچوں نے جو ہے وہ جوڈو کراٹو کے جو ہے وہ شو جو ہے وہ پیش کیے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ لوگوں کی بڑی تعداد جو ہے وہ یہاں پر موجود ہے۔ باکسنگ کے مقابلے بھی جو ہے وہ دیکھنے کو ملے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے یہاں پر بینڈ نے جو ہے وہ اپنا فن پیش کیا ہے، گھوڑے نے ڈول کی تھاپ پہ جو ہے وہ رقص بھی جو ہے وہ پیش کیا ہے۔ یہ جلوس جو ہے وہ اپنے قدیمی رستوں سے ہوتا ہوا جائے گا، سرکورہ روڈ پر جائے گا، اور اس کے بعد سے یہ داتا دربار پہنچ کر جو ہے وہ اختتام پذیر ہوگا۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ ابھی کیونکہ کھیلوں کا آغاز ہوا ہے، اس کے بعد جو ہے وہ عید میلاد النبی کا کیک کاٹا جائے گا، جس کے بعد جلوس جو ہے وہ اپنے روایتی رستوں سے جو ہے وہ شروع ہوگا اور پھر داتا دربار پہنچ کے اختتام پذیر ہوگا۔ بڑی تعداد میں جو ہے وہ آشقان رسول جو ہے وہ اس جلوس میں جو ہے وہ شرکت کے لیے موجود ہیں۔ یہاں پر جو ہے وہ مختلف جو ہے وہ اسکاؤٹس نے جو ہے وہ اپنا جو ہے وہ پریڈ پیش کی۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ پرچم کشائی کی جو ہے وہ تقریب منعقد کی گئی، اور اب تھوڑی دیر بعد جو ہے یہ جلوس اپنے قدیمی رستوں سے روانہ ہوتا ہوا داتا دربار پہنچ کر جو ہے وہ اختتام پذیر ہوگا۔ اس کے علاوہ بھی شہر لاہور میں مختلف جو ہے وہ مرکزی جلوس جو ہے وہ شروع ہوں گے، جو آج 12 ربیع الاول کے حوالے سے جو ہے وہ نکالے جا رہے ہیں، اور مختلف تقریبات بھی جو ہے وہ منعقد کی جا رہی ہیں۔ جی راحیل، ساتھ ہی موجود رہیے گا۔ رخ کریں گے اسلام آباد کا، اویس عباسی وہاں پر موجود ہے۔ اویس، بتائیے گا، راحیل تو ہمیں بتا رہے ہیں کہ لاہور میں مختلف تقریبات کا اہتمام کیا گیا ہے اور مقابلے بھی ہوں گے، اور اسلام آباد میں کس طرح سے آج کے دن کو منایا جائے گا؟ جی بالکل، ملک بھر کی طرح وفاقی دارالحکومت اسلام آباد اور راولپنڈی جیسے جڑواں شہروں میں بھی جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ جو ہے مذہبی عقیدت و احترام کے ساتھ جاری ہے۔ اسلام آباد میں مرکزی جلوس مرکز مسجد سے برآمد ہوگا، جو کہ اپنے روایتی راستوں سے ہوتا ہوا وہیں پر اختتام پذیر ہوگا۔ اس کے حوالے سے جو سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے ہیں، جلوس کے ایریا کا مکمل طور پر کارڈن آف رکھا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر پنڈی کی بات کی جائے تو پنڈی میں 2 مقامات سے جو ہے آج 12 ربیع الاول کے جلوس جو ہے نکلیں گے۔ پہلا جلوس جو 22 نمبر چونگی سے نکلے گا، بلکہ جبکہ دوسرا جلوس جو ہے وہ جامع مسجد راولپنڈی سے نکلے گا۔ اس جلوس کی سیکیورٹی کی بات کی جائے تقریباً 6000 سے زائد جو ہے پولیس اہلکار سیکیورٹی پر معمور ہیں، اور ایریاز جہاں سے جلوس کا روٹ ہے اسے مکمل طور پر کارڈن آف کیا گیا ہے، اور راولپنڈی میں مجموعی طور پر تقریباً 130 کے قریب جو ہے
है वो छोटे बड़े जुलूस निकलेंगे जो कि अपने मुकर्रर रास्तों से होते हुए मरकज़ी जुलूस में शामिल होते जाएंगे। ताहम ये जुलूस जो है अपने रूट्स मुकम्मल करते हुए शाम को जो है जामा मस्जिद में जहाँ से ये निकले हैं वहीं पर इख्तिताम पज़ीर होंगे और इसके साथ साथ जिन एरिया से जुलूस गुजरेंगे उनको मुकम्मल तौर पर कॉर्डन ऑफ किया गया है, गलियों को हारदार तारे लगाकर बंद किया गया है। इसके साथ साथ ट्रैफिक पुलिस के एहलकार, रावलपिंडी पुलिस के एहलकार, दीगर लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के एहलकार जो है यहाँ पर वो सिक्योरिटी के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। जी, सिक्योरिटी के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। राहील सैयद लाहौर से अपडेट कर रहे थे और अवैस अब्बासी हमें इस्लामाबाद से आगाह कर रहे थे और तैयारियों की सूरत हाल से आगाह कर रहे थे। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी ना सिर्फ मुसलमानों बल्कि दुनिया के तमाम इंसानों के लिए मशअल राह है। आज हमारा मुआशरा जिन मसाइल से दो चार है उन मसाइल का हल सुन्नत नबी में ही मौजूद है। हमारी ज़िंदगियों में उनकी सुन्नत कैसे किरदार अदा कर सकती है, इस हवाले से रिपोर्ट करेंगी कराची से रुताबा अरूस। अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क़यामत तक के मुसलमानों के लिए रहनुमा और रहबर बना के भेजा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत और किरदार कुरान करीम का अमली नमूना है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने मेरी सुन्नत से मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की और जिसने मुझसे मोहब्बत की वो जन्नत में मेरे साथ होगा। सुन्नत पर अमल करने के बेशुमार दीनी और दुनियावी फ़वाइद हैं। रब्बे करीम की रज़ा हासिल होती है, इसके साथ साथ दुनियावी कामयाबियाँ भी मुक़द्दर बनती हैं। हम छोटी छोटी सुन्नतों को अपने रोज़मर्रा के मामूलात का हिस्सा बनाकर दीन और दुनिया दोनों में फलाह पा सकते हैं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी हम सबके लिए मिसाली नमूना है, तो उसको हम जितना फॉलो करेंगे उतना ही हमारी ज़िंदगी बेहतर होगी, चाहे वो दीन के मामले में हो चाहे वो दुनिया के मामले में हो। नमाज के अलावा भी बहुत सारे ऐसे सुन्नत अमल हैं जो हमें करने की ज़रूरत होती है। जो छोटी छोटी सुन्नतें होती हैं ना, उसी से ही अगर हम उन्हीं को फॉलो करें ना तो उससे भी हमें काफ़ी फ़ायदा हो सकता है। रबीउल अव्वल के हवाले से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को अपनाने की ज़रूरत है। अगर हम उनकी तालीमात पर अमल पैरा होंगे तो हमारी ज़िंदगी वो सेटिस्फाइड लाइफ होगी, वो टेंशन फ्री और प्रॉब्लम फ्री लाइफ होगी। सच बोलना, ईमानदारी को अपना शुआर बनाना, अदल व इंसाफ से काम लेना, दरगुजर करना, लोगों से अच्छे अखलाक से पेश आना, यहाँ तक के राह से पत्थर हटाना, ये वो सुन्नतें हैं जिन्हें अपनाने से बेअमन और बेसुकून मुआशरा एक मिसाली मुआशरे की शक्ल इख्तियार कर सकता है। तो मुल्क भर की तरह पेशावर में भी 12 रबीउल अव्वल मजहबी जोश व जज्बे के साथ मनाया जा रहा है। शहर भर में तकारीब मुनक्किद की जाएंगी। सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजाम किए गए हैं। इसी बारे में मजीद क्या तफसीलात है ये जान लेते हैं आमिर जमील से। जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह पेशावर में भी जश्न ईद उल मिलादुन नबी इंतहाई जोश व जज्बे और मजहबी अकीदत और एहतराम के साथ मनाया जा रहा है और इस हवाले से पूरे पेशावर के अक्सर बाज़ारों को जो है बरकी कुमकुमों से सजा दिया गया और न सिर्फ बाज़ार बल्कि सरकारी और नीम सरकारी जितनी भी अहम इमारतें हैं उन्हें भी बरकी कुमकुमों से सजाया गया और इस हवाले से मुख्तलिफ़ औकात में तकरीबात का भी इनेकाद किया गया है। इस वक्त भी हम अशनगरी में मौजूद हैं जहाँ पर हम देख सकते हैं कि अशनगरी बाज़ार को आज के दिन के हवाले से सजाया गया है। बुनियादी तौर पर आज के दिन के हवाले से 2 मरकज़ी जुलूस हैं जो कि एक दोपहर में बरामद होगा जबकि दूसरा जो है वो रात के करीब बरामद होगा। इसके साथ साथ अगर हम सिक्योरिटी की बात करें तो आज के दिन के हवाले से सिक्योरिटी के भी इंतहाई सख्त इक़दाम किए गए हैं। तकरीबन 1,500 से ज़ायद पुलिस एहलकार जो हैं वो पूरे पेशावर में तैनात हैं और SSP ऑपरेशन का ये भी कहना है कि आज के दिन जो है वो टारगेटेड ऑपरेशन भी खुसूसी तौर पर किए जाएंगे। जी, लाहौर में भी जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मजहबी अक़ीदत व एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। मुख्तलिफ जगहों पर नाश्ते का वसी इंतज़ाम किया गया है। महाफिल का भी एहतमाम और गली मोहल्लों को भी सजा दिया गया है। मज़ीद क्या सूरत हाल है ये जानते हैं हमारे नुमाइंदे मुबीन हैदर से जो इस वक्त जौहर टाउन के इलाके में मौजूद हैं। बिल्कुल, सबसे पहले तो तमाम अहलियान इस्लाम को जो है जश्न वलादत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशियाँ बहुत मुबारक हों। पूरे पाकिस्तान की तरह पंजाब के सूबा दारुल हुकूमत लाहौर के अंदर भी वसी पैमाने पर जो जश्न वलादत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाया जा रहा है। मुख्तलिफ जगह पर नाश्तों का इंतज़ाम किया गया है, मसाजिद सजाई गई हैं, महाफिल का अहतमाम किया गया है, लंगर का वसी अहतमाम किया गया है। कोशिश की गई है कि वसी पैमाने पर जो है लंगर नाश्ता किया जाए ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा शरीक किया जा सके इस खुशी में। इस वक्त हम लोग जौहर टाउन के इलाके में मौजूद और यहाँ भी ये सूरत हाल दिखाई देती है कि मेरा कैमरा
गवर्नमेंट फ़खर आपको रकम में दिखाए तो यहाँ पर भी एक वसी इंतज़ाम है नाश्ते का, जहाँ पे लोग एक बड़ी तादाद में मुस्तफ़ीद होते दिखाई दे रहे हैं हमें। एक बड़े वसी पैमाने पर जो है इंतज़ाम किया गया ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस खुशी में जो है इससे मुस्तफ़ीद हो सके, और कोशिश की जाती है कि जितने भी मुसलमान इसमें ज़्यादा से ज़्यादा शरीक हो सकें, अच्छाई और खैर फैलाई जा सके, और कोशिश करते हैं कि जितनी भी तालीमातें इस्लाम और तालीमातें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं उनको भी जो है परवान चढ़ाया जा सके। जी वेलकम बैक। तो निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ की जानिब से कहा गया कि सज़ा याफ्ता शख्स को अदालतों ने बाहर जाने की इजाज़त दी थी, एग्जीक्यूटिव ने नहीं। जब किसी को अदालत ने सज़ा दी है तो मैं ख़त्म कर सकता हूँ, ना बढ़ा सकता हूँ। नवाज शरीफ के मामले पर वज़ारत कानून से राय मांगी है। हम चाहते हैं कानून अपना रास्ता खुद इख्तियार करे। नवाज शरीफ के बारे फैसला अदालतों ने करना है। तो निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ की जानिब से ये कहा गया है कि सज़ा याफ्ता शख्स को अदालतों ने बाहर जाने की इजाज़त दी थी। जब किसी को अदालत ने सज़ा दी है तो मैं ख़त्म कर सकता हूँ, ना बढ़ा सकता हूँ। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर ने लाहौर का दौरा किया, जहां उन्होंने सूबाई एपेक्स कमेटी के इजलास में शिरकत की। सिपा सलार का कहना था कि गैर कानूनी कारोबारी सरगर्मियों के खिलाफ कार्रवाई से पाकिस्तान को मुआशी नुकसानात से निजात मिल सकेगी। इस्लामाबाद से रिपोर्ट देखिए। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का लाहौर का दौरा, सूबाई एपेक्स कमेटी के इजलास में शिरकत। इजलास में निगरान वजीर आला पंजाब मोहसिन रजा नकवी भी शरीक हुए। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की आमद पर कोर कमांडर लाहौर ने उनका इस्तकबाल किया। एपेक्स कमेटी इजलास के दौरान आर्मी चीफ को सूबे की मजमूई सिक्योरिटी सूरत हाल, बिजली, गैस चोरी, जखीरा अंदोजी और गैर मुल्की करेंसी की स्मगलिंग के खिलाफ क्रैकडाउन के हवाले से तफसीली ब्रीफिंग दी गई। इजलास के शुरका को अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किए गए इक़दाम और कच्चे के इलाके में जारी ऑपरेशन की पेशरफ्त के बारे में भी आगाह किया गया। फोरम ने गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्की शहरियों की वतन वापसी का भी जायजा लिया, जबकि फोरम को खुसूसी सरमायाकारी सहूलत कौंसिल और ग्रीन पंजाब के इक़दाम की पेशरफ्त से भी आगाह किया गया। शुरका से गुफ्तगू में आर्मी चीफ ने इस बात पर जोर दिया कि गैर कानूनी मुआशी सरगर्मियों के खिलाफ कानून नाफिज करने वाले इदारे और मुतल्लिका महकमे मिलकर पूरी कुव्वत के साथ कार्रवाइयाँ जारी रखें। गैर कानूनी मुआशी सरगर्मियों के खिलाफ कार्रवाइयों के नतीजे में पाकिस्तान को मुख्तलिफ तरीकों से होने वाले मुआशी नुकसानात से निजात मिल सकेगी। आर्मी चीफ ने तारीखी इक़दाम के सूदमंद असरात के लिए तमाम मुतल्लिका महकमों के दरमियान हमांगी की जरूरत पर जोर दिया। इजलास के शुरका ने इस बात का इयादा किया कि रियासती इदारे, सरकारी महकमे और अवाम सूबे की तरक्की और खुशहाली के लिए मुत्तहिद हैं। डायरेक्टर कम्युनिकेशन IMF ने पाकिस्तान के एनर्जी सेक्टर में रिफॉर्म्स का मुतालबा किया है। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान में अमीर तबके पर ज़्यादा टैक्स आयद किया जाना चाहिए। मजीद कहा गया कि डायरेक्टर कम्युनिकेशन IMF की जानिब से कि तवानाई के शोबे में इस्लाहात लाई जाएँ ताकि एनर्जी सेक्टर की कारकर्दगी को बेहतर बनाया जा सके। MD IMF चाहती हैं कि पाकिस्तान में अमीर लोग ज़्यादा टैक्स अदा करें। पाकिस्तान में टैक्स टू GDP का तनासुब इंतहाई कम है। IMF मुआहदे से पाकिस्तान की मैशत में इस्तेहकाम लाना मकसूद है। पाकिस्तान को ऐसी मॉनेटरी पॉलिसी की ज़रूरत है जिससे महंगाई में कमी हो।